Hello students, welcome once again in our unit number 4, Chemical Bonding and Molecular Structure. Last 3 different sessions we are on 4.4, topic number 4.4, which is based on VSEPR theory. In this VSEPR theory, we know that there is a repulsion between a bonded pair, bonded lone pair and lone pair. So according to this concept, we focus on a certain examples, which can be classified into 2 parts, where your central atom does not have a lone pair. So what is the shape of the molecule and what's the bond angle between them, and what are the illustrations or examples. And then next portion is the most important portions, your central atom having a one or more than one lone pair. So what is the change in the shape and change in the bond angle that we have to observe. Today we focus on a very good new concept, is a valence bond theory, or sometimes called as a VB theory too. So here in the descriptive manner, what they explain in the portion of this J.D. Lee book, right? So far we have studied Lewis' approach for writing the structures of molecules and explain formation of chemical bond between them. हमें मालूम है कि लुइस जो अप्रोच है उससे हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं या हम ड्रॉ कर सकते हैं, और विच टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड उसका जो फॉर्मेशन होगा उसका हम पता लगा सकते हैं. Lewis structure, however, tell us nothing about why covalent bonds are formed or how electron manage to be shared between atoms. There is a drawback of Lewis structure which does not get any type of idea कि why covalent bonds are formed, क्यों शेयरिंग हो रहा है, राइट? और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में शेयरिंग कर रहे हैं वो किस तरह से अपना शेयरिंग मैनेज कर पाएंगे. तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन से वो वैलेंस यानी वो लुइस स्ट्रक्चर से हमें नहीं मिल सकती है. नोर डज द VSEPR मॉडल वाई एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप देमसेल्व्स इनटू डोमेन्स एज दे डू. So thus we must look beyond these simple models to understand the covalent bond and the factors that determine the molecular geometry. तो हमें थोड़ा उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, और डिटेल में जाके हमें ये देखना पड़ेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, और जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से यहाँ पे हो सकती है. So there are fundamentally 2 theories of covalent bonding that have evolved based on quantum theory. वो जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोर्शंस पढ़ा हुआ था, तो इन 1927 नियर अबाउट इन 1927 ये जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है उसका जो ओरिजिन हुआ कि हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी से किस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्ड है उसका एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं. बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द वैलेंस बॉन्ड थियरी. सो इन 1932 देयर इज वन मोर थियरी इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MO theory. This theory is a full and final because there is no limitation in molecular orbital theory. But our journey towards to the molecular orbital theory via this valence bond theory. So they differ principally. यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. वैलेंस बॉन्ड थियरी भी हम पढ़ेंगे और मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे हम फ्यूचर अभी जैसे जैसे हम लेसन्स में आगे बढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री का पूरा सर्फिंग करेंगे, तो एंड ऑफ द डे मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी ही आपको सब कुछ है वो यहाँ पे समझा सकती है. सो व्हाई दे आर डिफर प्रिंसिपली इन द वे दैट कंस्ट्रक्ट अ थियोरेटिकल मॉडल ऑफ द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल. यानी जो मॉलिक्यूल है उसमें किस तरह से वो दोनों थियरी के बीच में एक बेसिक डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है. सो द वैलेंस बॉन्ड थियरी imagines, mind well, what they suggest that they imagines individual atoms and each with its own orbitals and electrons coming together and to form the covalent bonds of the molecule. वैलेंस बॉन्ड में क्या है कि वो किस तरह से स्लो मोशन में आके अपना बॉन्ड बना रहे हैं वो हमें दिखाना चाहते हैं.
वंस अगेन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस, ये किसी हमारी एनसीईआरटी बुक में भी ये डिफरेंस नहीं बताया हुआ है। अगर टीचर्स इंटेलेक्चुअल हो और स्टूडेंट भी इंटेलेक्चुअल हो तो पता चल सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज अ वेरी गुड डिफरेंस। ओके, जो कोई भी अच्छी तरह से पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि द वैलेंस बॉन्ड थियरी इमेजिन्स इंडिविजुअल एटम्स, जैसे मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में H2 बन रहा है, ठीक है, जैसे मेरे Cl और Cl के बीच में क्लोरीन बन रहा है, तो वो क्या करेंगे, तो कि वो जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एटम्स क्या है, उसकी कौन सी ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल्स में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऐसा हमें पिक्चर दिखा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, ऐसा हमें इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी है ना, वो उससे डिफरेंट है। द मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी does not concern itself how the molecule is formed। वो ऐसे नहीं दिखा रहा है कि क्यों बना हुआ है, वो इसलिए बता रहा है ये बन गया है, अभी इसमें क्या है, जैसे वो H2 है तो H2 में क्या है वो दिखा रहा है। सो इट्स जस्ट अ व्यू अ मॉलिक्यूल एज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड इन सम वे बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये दोनों के बीच में यहां पे गैप है। वैलेंस बॉन्ड थियरी में इंडिविजुअल एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे वो दिखा रहा है। वाइल इन मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी वो ऐसे दिखा रहा है कि H2 मॉलिक्यूल तो बन गया है, अभी H2 मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या उसका जो सेपरेशन है वो किस तरह से हो रहा है, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी का फंडा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी देखिए, अभी हम आगे बढ़ेंगे। द वैलेंस बॉन्ड थियरी फर्स्टली प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927, राइट। 1927 में जो दो साइंटिस्ट थे, हिटलर और लंदन, उसने ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था। एंड फर्दर एक्सप्लेन बाय पोलिंग इटाल यानी उसके साथ भी कोई, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन पोलिंग और स्लैटर, दूसरा जो साइंटिस्ट था वो स्लैटर था, लेकिन जो डोमिनेंट था वो पोलिंग था, और उसके लिए लिनस पॉलिंग हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1954। The theory was very widely used in the period 1940 to 1960। यहाँ पे उसने बहुत अच्छी तरह से ये वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसने यूज किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एटम्स विथ अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो पेयरिंग होगा तो वो तो जुड़ेंगे ही नहीं। जैसे कोई ऑर्बिटल्स है, राइट, जैसे 1s है वो कंप्लीट है, जैसे हीलियम की 1s कंप्लीट है और दूसरे हीलियम की 1s भी कंप्लीट है, तो दोनों 1s जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों कंप्लीट है तो क्यों जुड़ेंगे। तो He2 इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो कई बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर जी हीलियम तो इनर्ट गैस है इसलिए जुड़ेगा नहीं, मैं उसका रीजन बता रहा हूं, वो जुड़ता नहीं है इसलिए इनर्ट है इसलिए जुड़ता नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे उसने अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एटम्स विथ अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन्स tend to combine with other atoms which also have unpaired electron। जब अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे हम यहाँ पे ये कुछ है यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सो इन दिस वे द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर पेड अप एंड द एटम्स इन्वॉल्व ऑल एट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। यहाँ पे जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है, तो हमें ये देखना है कि किस तरह से वो है। यहाँ पे हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, अभी मैं फिर से बोल रहा हूं कि अ कोवैलेंट बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन फ्रॉम ईच एटम। दोनों एटम में से एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अपना पेयरिंग करेगा। अभी उसका क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसकी ये 1s ऑर्बिटल है, और दूसरा हाइड्रोजन है उसकी भी ये 1s ऑर्बिटल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे भी उसका पूरा क्लाउड दूसरे हाइड्रोजन का है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, तो कि ये वो उसका ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये है। तो यहाँ पे पूरे एरिया में अभी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अभी ये मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है H2 का, लेकिन ये जो न्यूक्लियस था उसकी जो स्पिन थी, इसकी जो स्पिन हम बोल रहे हैं
वो क्या होती है +1/2, यानी इसकी रिवर्स होनी चाहिए -1/2, तो ही वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी स्पिन चेंज की हुई। वो तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा, वो जो स्केल था उसने क्या हुंड के जो रिजल्ट्स की वजह से हम यहाँ पे उसको देख पाएंगे। सो इन द केस ऑफ H2 इस तरह से बन रहा है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ उसकी स्पिन है ना, वो चेंज हो जानी चाहिए। ये +1/2 वाला है, ये -1/2 वाला है, तो उसने वो स्पिन चेंज करके ये पूरा यहाँ पे है जो कोवेलेंट बॉन्ड, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैं अभी भी उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी का कॉन्सेप्ट है। Once again, a covalent bond results from the pairing of electrons, one from each other, and the spins of the two electrons must be opposite, यानी anti-parallel होनी चाहिए, because of the Pauli exclusion principle that no two electrons in one atom can have all four quantum numbers same. वो तो पोलिस का एक्सक्लूसिव हमें मालूम ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 1s का है, तो 1s का n इज इक्वल टू क्या, इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, 0 है। उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, 0 है। और उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो क्या +1/2 है। दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका भी n क्या है, 1 है। L इज इक्वल टू 0, Ml इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो क्या है, तो क्या -1/2 है। यानी उसकी जो स्पिन है वो यहाँ पे हमें डिफर दिखाई दे रही है, राइट। वो ऑपोजिट स्पिन की वजह से हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं। ये पोलिस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा हुआ था वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। So the basic idea of the theory is that a bond between two atoms is formed when two electrons with their spin paired are shared by two overlapping atomic orbitals, one orbital from each of the atoms joined by the bond. So by overlapping of orbitals we mean that the portion of two atomic orbitals from different atoms share the same space, जो बीच वाला space है वो दोनों ने एक साथ यूज किया हुआ है। So this electron pair becomes concentrated in the region of overlapping and helps bind the nucleus together. तो वो क्या, दोनों न्यूक्लियस को अपने बाइंड करने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। So the number of bonds formed by an atom is usually the same as the number of unpaired electrons. जहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे एक बॉन्ड बन रहा है तो दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है वो ग्राउंड स्टेट में हो गए, तो वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज यूजुअली द सेम एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, एंड दैट इज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। वो जो एनर्जी स्टेट है वो बिल्कुल लोवेस्ट हो गई है। हाउएवर इन सम केसेस द एटम, अभी देखिए मैं उसको आपको एक और तरीके से भी दिखाना। सो दिस अकर्स बाय एक्साइटेशंस ऑफ द एटम when electrons which were paired in the ground state are unpaired and promoted into suitable empty orbitals, right? So this increase the number of unpaired electrons and hence the number of bonds which can be formed. तो वो क्या होगा, unpaired electron को जो उसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ाएगा और उसके साथ ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे। So the shape of the molecule is determined by the direction in which the orbital point. The way valence bond theory views the formation of hydrogen molecule, यहाँ पे जो है मैंने अभी आपको जो एग्जांपल्स दिखाया था वो मैं क्यों इस बुक का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से फिगर उसने रिप्रेजेंट की हुई है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में इतनी अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, वो उसने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाया है, इसलिए ये मैं जेडी ली की जो इनऑर्गेनिक की बुक है उसका मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। The way valence bond theory views the formation of hydrogen molecule, which is shown in figure, so as the two atoms approach each other, their 1s orbital begin to overlap and merge as the electron pair spreads out over both orbitals. यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, वो दोनों सेपरेट हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे ओवरलैपिंग यहाँ पे बताया हुआ है और कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन पे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वे दूर से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, फिर उसने फाइनल ओवरलैपिंग किया है। तो अभी जो ये एरिया हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस के बीच में है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाने की वजह से ये हाइड्रोजन एज ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। आपको ये हाइड्रोजन का एग्जांपल्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, मिनिमम। जितनी भी मिनिमम हो जाएगी तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा।
फाइन। अभी एक बहुत फर्स्ट क्लास जो यहाँ पे मैंने एक फिगर है और एक ग्राफ है वो भी यहाँ पे समझाया हुआ है। देखिए, ये आप ग्राफ देखिए, ठीक है। ये ग्राफ आपको समझने चाहिए। फर्स्ट, ये जो ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 4.15 का ग्राफ है। ये दो हाइड्रोजन जब दूर से नजदीक आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी डिक्रीज हो रही है, कितना कम हो रहा है और स्टेबल कितना हो रहा है, उसका ग्राफ है। देखिए, मैं यहां से ये जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वर्सेस एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। अभी देखिए, यहां से हम आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, थोड़ा दूर है, बिल्कुल दूर है, दोनों जुड़े हुए नहीं है। एक तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोई भी रिपल्सन या अट्रैक्शन कर नहीं पा रहा है। जो डिस्टेंस होता है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस हम बोल रहे हैं। जैसे वो नजदीक आएगा तो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शंस करेगा। सेम वे दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस पहले वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शंस करेगा, इसलिए नजदीक आ रहे हैं। लेकिन जितना नजदीक आ रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो अंतर है, ये जो इसका जो डिस्टेंस है यार, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे कम हो जाने की वजह से एक ऐसे यहाँ पे ये जो मोड़ हम दिखा रहे हैं, ये जो एकदम पीक है, यहाँ के लोवेस्ट पीक है, इसका मतलब है कि ये बहुत पास में आ गए हैं और यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है। आप देखिए यहाँ पे ये जो हमें बता रहा है वो दो हाइड्रोजन एटम सेपरेटेड थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। जैसे हम नजदीक आ रहे हैं तो उसने वो एनर्जी लूज की हुई है। यहां पे क्या होगा तो कि ये जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 435 किलो जूल पर मोल, यानी उतनी एनर्जी उसने कम कर दी है। अगर हम फिर भी हम डिस्टेंस अभी भी कम कर रहे हैं तो एनर्जी क्यों बढ़ रही है? अभी एनर्जी बढ़ने का जो रीजन है वो क्या होगा कि जैसे वो नजदीक आएंगे और भी नजदीक आएंगे तो अभी दो न्यूक्लियस का रिपल्सन चालू हो जाएगा, ठीक है, शुरू हो जाएगा। जैसे अभी तो एक न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन लगा रहा था, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पे दोनों रिपल्सन एंड अट्रैक्शंस दोनों सेम हो गए थे। जैसे मैं यहाँ पे नजदीक रहूंगा तो रिपल्सन की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से फिर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से देखिए, यहाँ पे अट्रैक्शंस बढ़ रहा है। यहाँ पे अट्रैक्शंस रिपल्सन बिल्कुल इक्वल हो गया है। अभी रिपल्सन बढ़ रहा है और रिपल्सन बढ़ने की वजह से वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। यानी ये जो यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिलेगा, ये डिस्टेंस वो क्या होगा उसकी बॉन्ड लेंथ होगा ना, क्योंकि बॉन्ड अच्छी तरह से बन रहा है। 75 पाइकोमीटर का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यानी 75 पाइकोमीटर तक वो नजदीक आ सकते हैं। अगर हम 74, 73, 72, 71 ये लगाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से देखिए, फिगर shows how the potential energy changes when the two hydrogen atoms come together to form a H2. We see that the minimum potential energy occurs at a bond distance of 75 picometer, and 1 mole of hydrogen molecule is more stable than 2 mole of hydrogen atoms by 435 किलोजूल, क्योंकि इसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी है। क्योंकि आउफबाउ का प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम या कोई भी नेचर में कोई भी स्पीसीज है वो अपनी एनर्जी जिस तरह से कम कर रही है तो उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सो उसका मतलब यह हुआ कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, 435 किलो जूल पर मोल है। यानी उसका मतलब क्या हुआ, मुझे दो हाइड्रोजन को फिर से अलग करने के लिए 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अभी ये जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है और इतनी एनर्जी वो यहाँ से रिलीज कर पाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया आपको? ये जो फिगर्स का जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो एवरी कोवेलेंट बॉन्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ टू क्वांटिटीज। द एवरेज डिस्टेंस, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की भी बात करनी चाहिए, बिटवीन द न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड, एंड दूसरा है एनर्जी, the amount of energy needed to separate the two atoms to produce a neutral atoms again. So as the distance between the nucleus
and the electron cloud that lies between them is decreasing, it means that your potential energy is decreasing. ये उसका की पॉइंट यहाँ पे समझाया हुआ है. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या समझा रही है, फिर उसका ड्रॉबैक क्या है. अभी तो थोड़े देर के बाद हमें पता चलेगा, ताकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की तरफ चले जाएंगे. ओके, दूसरा उसने एग्जांपल एक अच्छा दिया हुआ है. नाउ लेट अस लुक एट द HF मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल को आप देखिए, विच इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन हाइड्रोजन, क्योंकि एक तरफ H है, दूसरी तरफ क्या है, फ्लोरीन है. तो HF का तो हम स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा सकते हैं. देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन HF. यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, हाइड्रोजन इज 2.1, तो उसका डिफरेंस अभी 1.9 के पास पहुंच गया है. उसमें आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन अभी शेयरिंग चल रहा है, लेकिन ये बॉन्ड पोलर है. सो अभी क्या होगा, एंड वी कैन रिप्रेजेंट द बॉन्ड फॉर्मेशन. जैसे जैसे H और F है वो नजदीक आएंगे तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं. तो द लुईस स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द HF बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन फ्रॉम फ्लोरीन. To explain this according to valence bond theory, we must have two half-filled orbitals, one from each other, that can be joined by overlap. तो उसको ओवरलैप करने के लिए उसके पास एरिया तो होना चाहिए ना, थोड़ा खाली या हाफ फील्ड तो होनी चाहिए, तो ही वो यहाँ पे दिखा सकते हैं. देखिए, ये HF का मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है. हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल है और फ्लोरीन की जो 2 है, क्योंकि 1s तो उसका हीलियम में चला जाएगा तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं होगा. उसके वैलेंस में 2 और 2 और 2 6 और एक साथ यहाँ पे भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है. तो ये हाफ फील्ड और ये हाफ फील्ड है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी और वो HF बनाएंगी. So the requirements for the bond formation are met by overlapping the half-filled 1s orbitals of hydrogen with a half-filled 2p orbitals of fluorine. So there are two orbitals plus 2 electrons whose spin can adjust so they are paired. जैसे इसकी स्पिन +1 होगी तो वो नजदीक आने पर वो -1 हो जाएगा, या +1 है तो ये माइनस होना चाहिए, यानी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, एंटी होनी चाहिए. राइट. सो द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स है. देखिए ये 2p ऑर्बिटल्स, देखिए आप यहाँ पे ये जो 2pz की मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, या 2px है या 2py है, जो भी है उसमें कोई हमें क्योंकि अगर हम इसको 2px बोलेंगे तो ये 2py है, 2pz, अगर 2px इसको बोलेंगे तो ये y है, z है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम दिखा सकते हैं. अभी जो 1s का पूरा क्लाउड है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. p का आइदर और के पास होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है. अगर ये जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो इस तरह का ओवरलैप वो हमें दिखा सकते हैं. अभी आपको क्या करना है कि ये जो ओवरलैप यहाँ पे फाइनल ओवरलैप HF का यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, तो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस के बीच में यह बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है. समझ में आ रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी किस तरह से हमें ये पोर्शन से वो हमें दिखा रहे हैं. अभी हम देखिए, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि द ओवरलैप ऑर्बिटल्स, राइट, जो वो यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं, द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, thereby allowing each atom of the complete its valence shell. तो हम यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहे हैं, ये 2s का जो इलेक्ट्रॉन्स था 2p का था, और देखिए यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, एक किसका है, फ्लोरीन का है, दूसरा हाइड्रोजन का है. वो कलर्ड एरो यहाँ पे हाइड्रोजन में हमने दिखाई दे रहा है. तो ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है वो आप देखिए. मैं आपको और भी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे समझाना चाहता हूँ. मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग का भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, a covalent bond is formed between two atoms in a molecule when the half-filled valence atomic orbitals of the two atoms containing unpaired electron overlap with one another and the electrons pair up in the overlap region. So due to the overlapping, electrons is localized between the atoms in the bond region. When the attractive force, means there is a force between electron and nucleus of two different atoms, are stronger than the repulsive force between electron and nucleus. So energy is released, means exothermic reaction. It means that lowering of energy makes the molecule stable.
यहाँ पे उसने जो उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाया हुआ है कि आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी की वजह से जो आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना चाहते हैं, तो दो एटम से जो मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं उसकी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाफ फील्ड यानी उसमें कुछ जगह होनी चाहिए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि व्हाई डज He2 इज नॉट एग्जिस्ट रिगार्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, the non-formation of He molecules can be explained on the basis of potential energy consideration in the formation of covalent bond in terms of atomic overlap. So when two helium atoms approach each other from infinite distance, a number of forces become operative. So these are 4 attractive forces between two nucleus and 2 electrons, and 5 repulsor forces between the 4 electrons themselves and between the 2 nuclei. Since the repulsive forces are predominant, then He2 molecule formation does not take place. देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों हीलियम एटम एक दूसरे के साथ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तो 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस दो न्यूक्लियस के बीच में वो है चला है, और 5 रिपल्सिव, या 5 क्या है, क्योंकि दोनों का जो ऑर्बिटल्स है ना वो पैक हो गया है। If we take the atomic orbital overlap as the basis of covalent bond formation, each helium atom is filled 1s2, दोनों 1s2 हाउसफुल है, तो इसके पास जगह नहीं है ओवरलैपिंग करने के लिए, राइट? सो which cannot overlap with the filled 1s orbital of the another atom. So atomic orbitals overlap require presence of half-filled atomic orbital, hence formation of He2 molecule does not take place. यानी जो ऑर्बिटल्स में जगह ही नहीं है, यानी हाउसफुल है, तो वो वैलेंस बॉन्ड थियरी के कॉन्सेप्ट से वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरफ हम जाएंगे। आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको ये जो जेडी ली की बुक में यूज कर रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है, आपका कोई सजेशंस हो तो भी मुझे बताइए, और जो मेरा वीडियोस में यूट्यूब में अभी, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में क्या होगा कि आपको रिवीजन करने के लिए जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको ही हम रिवीजन करवा पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप में भी बताइए। ठीक है, तो फाइन, तो आप देखिए अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।